taking up all the queries and questions that you would be still left with. Okay. So let me start with the problems that we are going to solve today. So today's agenda is to solve majorly these 5 problems. Number one, how to manage education and co-curricular activities. Number two, how to perform multitasking. Number three, how to plan and prioritize. Number four, how to get efficiency. And number five, how not to waste time. Am I clear with this? Right? These are the main 5 questions you guys are having. Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Uh, I want to promise you one thing: the kind of things, the kind of strategies, the kind of practical implementation framework that I'll be giving you in this 40-minute session. If you apply all of them with 21 days consistency, right, and honesty, you would be able to tackle all these 5 questions and 5 problems. Okay, cool with you guys? Yes, sir. So there are a few prerequisites. There are a few prerequisites that I have before starting the session. Number one, your phone should be on silent mode. Number two, your mental presence should be in this session, not on Instagram and not on any other platform, because I know this session is online and I can't track what you guys are doing, right? Number three is you should be having a copy and a pen, because I will be giving you some small short activities or some questions that you are supposed to write down. Okay. Number four is you have to perform all the tasks, and number five is questions in the end. Are we clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, that's cool. I'm really happy to listen to this yes or no, because this gives me gives me a feedback what kind of whether my message is going towards you or not. Let's start this let's start this session with analyzing first, right? What should be an ideal case scenario for us to be successful in life and to do all the stuff that we actually want? Number one, how much are the hours that we have in a particular day? Everyone knows 24, right? Number two, Yes, sir. how much does a normal person sleeps? We'll take it 8 hours, right? Everyone says, each and every doctor says 8 hours of sleep is more than sufficient for any normal person, 7 to 8 hours. Okay. Number three, supposedly you are attending all your classes, online classes, offline classes, 8 hours with complete honesty. I know 8 घंटा कोई नहीं attend करता, but still we'll take it as a 8 hour class. Be it you might be in school, you might be in college, or you might be having any extra classes, right? Now let's take up, you are having some miscellaneous activities like clothing, bathing, brushing, etc., etc. Like we give that 2 hours, and fun time for 2 hours, like Instagram, like YouTube, like chill, Netflix, everything, right? So if we add up all of this, 8 plus 8, 16, 16 plus 2, 18, 18 plus 2, 20, right? Out of 24 hours, we are spending 20 hours that are fixed. Now the question is, where are the 4 hours that is time left? Where are the 4 hours which are missing in a daily basis, on the daily basis? Now let me tell you one simple thing. If you have the answer, where are these 4 hours? You are pretty much on the right track. That you know where am I wasting the 4 hours that I have, or kindly जिसका भी mic on है, kindly turn it off. It is थोड़ा disturbance आ रहा है. Okay. So अब question ये है कि किसको पता है कि where are these 4 hours? These 4 hours will make the difference between a topper and a failure. These 4 hours will make a difference between an average and a successful one. These 4 hours will decide what kind of package you would be having post. Am I right or not? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. That means 1/6 of the complete day is going to waste. That means in every 6 days, we are wasting one day. Yes, Yes, sir. sir. In every 6 weeks, we are wasting 1 week. Yes, sir. In every 6 months, we are wasting Exactly, one sir. month. Yes, And sir. in every 6 years, we are wasting 1 year. And if we think that our complete life is of 60 years, we are wasting damn 10 years. Yes. कौन डर रहा है? That's intriguing, sir. Honestly.
we have to understand the things that we do on daily basis will decide what we would be able to achieve at the end of our life. Now, अंबानी के पास भी बहुत देसी लाइन है, अंबानी के पास भी 24 घंटा है और भिखारी के पास भी 24 घंटा है. It is up to them how they are utilizing that time. Why people are ahead of others is because they are utilizing each and every hour, each and every minute of their life. अब ये हम लोग को लगता है कि यार 1-2 घंटा काम करने से क्या होगा, 1-2 घंटा काम करने से ये होगा कि हमारे पास वो 1-2 घंटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आवर्स, ईयर्स, मंथ्स का एक्सटेंशन, मंथ्स का बेनिफिट, मंथ्स का एज हम लोग को देंगे ओवर द अदर्स हु आर वेस्टिंग दैट टाइम बिहाइंड नेटफ्लिक्स, बिहाइंड चिल, बिहाइंड एनी अदर थिंग दैट इज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव. Are you guys on this? Do you agree with me? Yes or no? Absolutely, sir. Absolutely, Okay. sir. Definitely. Okay. So right now we are having complete understanding कि time तो यार है अपने पास, ठीक है? Because you must have heard of this cool line और कभी आपने शायद बोला भी होगा, क्या करूँ यार, time ही नहीं है. I don't have time. I cannot manage this thing because I don't have time. No. Everyone have time. Everyone has time, but the point is they are not able to manage it. So actual problem is not time. The problem is not that we don't have time. The only problem is we do not know the time management skill. That is why we are having this workshop, right? This 10-minute piece, this 10-minute bit of this session was just to make some people realize that why time management is important and why the things that I'm going to tell you guys is so very important to apply in real life, because that is something that is going to make a difference after 5 years, 10 years down the line, when some Pooja might be sitting over here, some Deepak might be sitting over here, and they will be making some difference in their lives just because of the 4 hours they'll be utilizing after this session. Cool? Yes, sir. Okay, let's Yes, sir. do a quick activity. This is an activity I did in 2016. One of my mentors gave me this activity, and this will help you understand the time management stuff, right? Supposedly, we are having these 5 things in front of us. Okay? Take a pen and paper. Come on, take a pen and paper. You guys having? Yes, sir. Okay. You are having an aquarium, right? Empty aquarium. You are having 4 things that you need to arrange in this aquarium so that we achieve the maximum efficiency. By maximum efficiency, I mean all of the 4 things should acquire the least amount of space. The least amount of space should be acquired by these 4 things. What should be the order of placing all these 5 things? All these 4 things. What these 4 things are: first is big rocks. Second one is pebbles. These are the big rocks, right? These are the pebbles. This is sand and this is water. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये एक्टिविटी देखी या सुनी भी हो, ठीक है? This is the activity which helped me realize in 2016 why time management is important. So I am giving you 1 minute or maybe 30 seconds to tell me the answer. What should be the ideal scenario? What should be the ideal priority section of all these 4 things? पहले कौन जाना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा? हमें किस ऑर्डर में डालना चाहिए? क्या हमें पहले सैंड डालना चाहिए, उसके बाद पेबल्स डालना चाहिए, उसके बाद वाटर, उसके बाद बिग रॉक्स डालना चाहिए, या फिर पहले रॉक्स डालना चाहिए फिर हमें वाटर डालना चाहिए, या क्या? Tell me your answer in 30 seconds. I'm giving you 30 seconds. Rock, Time starts rock, now. pebbles, sand, water. Okay. You sure? Yeah. Okay. Anyone else who thinks Yes, sir. that he I or have she has an the right answer? I have an answer to that, sir. Okay. Here, sir, if we see an aquarium, we see rocks, we see pebbles, sand, and water, sir. So if we consider our priority tasks, which are the daily go-to things, we would call them the big rocks, the things which are urgent, which are on priority, which we should do first. Okay. First, the water would come to give it some space. Okay. And then if we place the big rocks first, and then the small rocks are your smaller tasks, which are non-essential at the moment, which are smaller tasks. Okay. Then first the big rocks in the water, then the pebbles, and then the sand. Sand is water is not anything- present. Water is the 4th element. Okay. So you also Yes, sir. have to put water is not there. So you are telling me the water should go first, then big rocks, then pebbles, then sand. Okay. Yes, sir.
Okay, anyone else who disagrees and have a different answer? Sir, I think that Sir, the big rock should be added first, then the pebbles, then the sand, and then the water can be adjusted. Okay, why? Because if we Sir, put the I have a water different first to till the brim and then we add the big rocks, there are chances that we will spill the water out. Answer is Okay. space accumulation. Okay. So anyone, okay, I'm understanding your point of view. Okay. Anyone else who is having a different answer, not the same answer, but a different answer? First, I would like to put the sand, then small pebbles, big pebbles on the above sand, and then I will Okay. put the water. Okay. Okay. So according to me, I would put rocks first, then sand, Hmm. so as it Hmm. will occupy the space between the rocks, Hmm. then pebbles, and then Hmm. water. Okay. Okay. Any other answer, or should I answer the correct thing that actually has to be done in ideal case? Sir, I have an answer. Okay. Sir, basically it's going to be an aquarium, right? So it's quite familiar that it's going to be glass. So if we first of all put in the stones, it's going to damage the entire box. So that No. I'm not talking about that practical thing. You are completely right. But I'm not talking about that practicality that we are having aquarium in our house and अब मेरे को वो सजाना है. No. right. ठीक है. Any other Okay. answers? Sir, water, Sir. sand, and big rocks and small rocks, sir. Okay. 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 To all of those, for all of those who are telling me कि पहले water डालना चाहिए या पहले sand या फिर पहले pebbles डालना चाहिए, understand one simple thing. If we put water first, right? तो water एक अच्छा खासा जगह जितना भी वो घेर सकता है वो घेर लेगा. Okay? You guys agree? ठीक है. If we put big rocks or small rocks into it, तो रॉक्स उसके अंदर नीचे आ जाएगा, नीचे सेटल डाउन कर जाएगा. सपोजिटली वी आर एडिंग छोटा वाला पेबल्स. ओके. उसके बाद हम बड़ा रॉक्स डालते हैं. तो क्या आपको नहीं लगता जब बड़ा रॉक छोटे रॉक के ऊपर आएगा तो वो उसके बीच में स्पेस तो ले नहीं पाएगा, तो वो ऊपर रह जाएगा. एंड जस्ट बिकॉज बड़े रॉक्स ऊपर रह गए तो उसके बीच में स्पेसेस बच जाएंगे जिसके अंदर वाटर होगा. और Yes, sir. सैंड जब हम डालेंगे, जब हम Exactly, sir. सैंड डालेंगे तो सैंड उन स्पेसेस में नहीं जा पाएगा जिस स्पेस में वो शायद जा सकता था. गेटिंग मी? चलो, Yes. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीधा आंसर बताता हूं विद एक्सप्लेनेशन. राइट. सबसे पहले अगर हम सारे के सारे बड़े पत्थर इसमें ऐड करते हैं, ऑल द बिग रॉक्स इफ वी ऐड इनटू द एक्वेरियम, ठीक है, सो वो सबसे ज्यादा मेन जगह जो वो एक्वायर कर सकते हैं सबसे नीचे वाले लेवल पे वो एक्वायर कर लेंगे. यस और नो? सबसे Yes, नीचे sir. लेवल पे, बिकॉज दे आर द हेवीएस्ट वन. ओके. द सेकंड हेवीएस्ट वन इज क्या? छोटा सा पेबल. ओके. तो अगर हम पेबल्स डालेंगे तो जितनी भी बीच में स्पेसेस बचेंगी वो कौन एक्वायर कर लेगा? Small pebbles. स्मॉल पेबल्स. तो जितनी भी बीच में स्पेसेस होंगी या फिर ग्राउंड में थोड़ा जाने का स्पेस होगा, पेबल्स वुड गो इनटू दैट प्लेस. अब जहां पेबल्स नहीं जा सकता वहां क्या जा सकता है? सैंड. Sand. राइट. क्यों? सैंड इज हेवियर देन वाटर बट लाइटर देन दी पेबल्स. तो अगर हम लोग सैंड डालेंगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो छोटी छोटी जगहें जहां पर बड़े रॉक्स और छोटे रॉक्स के बीच में जाने की भी स्पेस नहीं है, वहां पर क्या चला जाएगा? हमारा सैंड चला जाएगा, जहां पर हमारा पेबल जगह नहीं ले सकता. गेटिंग मी? चला गया. Yes, sir. Yes, sir. बट देयर वुड ऑलवेज रिमेन सम एयर, सम स्पेस जहां पर हमारा सैंड भी नहीं जा पा रहा. वहां पे क्या जा सकता है? Water. Pani. Water. So what should be the ideal order of placing all these things into an aquarium? Big rocks, small rocks, sand, water. So whosoever told this order of big rocks, pebbles, sand, and water, kudos to all of them. A small clapping for all of them. Oh, thank you, thank you. That's really great, right? So we have to understand this is a simple activity which helps us understand that this complete aquarium is our 24 hours. This is our complete day. These big rocks, small rocks, sand, and water, all of these are the tasks that we have to perform. We have to place them in our schedule. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Okay. So first of all, if we place the biggest challenge, the most important thing into the aquarium, we are good to go. That we know कि यार सबसे important चीज तो सबसे पहले कर दिया. Now I'm free. Cool. For example, Yes, let me sir. take you my example. ठीक है. आज मेरे पास, I don't know why, आज मेरा one of the busiest day है. ठीक है. And आज के busiest days के अंदर मेरा जो big rocks है उसके अंदर एक ये P2 session है, right?
So today and the day before, the day before today, yesterday, I was thinking about all the major tasks: meeting with the client, podcast with the trainer, this P2 session. These were the three main rocks that I was having in my hands. कि मेरे को पता था कि यार बाकी काम बाद में हो जाएंगे. सबसे पहला I have to place these three rocks on the distance and so that I can plan other tasks. You getting me, guys? Yes, sir. करने के लिए मेरे पास और भी काम है, जैसे कि टीवी देखना, चिल करना, नेटफ्लिक्स देखना. अगर मैं पहले वो करने लग जाऊंगा कि यार सुबह पहले मैं नेटफ्लिक्स कर लेता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, P2 सेशन तो होता रहेगा, क्या वो सही होता? No, sir. Because watching Netflix is water. That is something जो सबसे एंड में आएगा, जब सब कुछ हट जाएगा, जब थोड़ी सी स्पेस बचेगी. Getting me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's move on. This correct order we have already understood. Now let's talk about what exactly our task is. Okay. Take a pen and paper. I hope you are guys having it. Write down these 9 steps. These 9-step framework that we have to apply so as to achieve 100% efficiency. Not 100%, but near to 100% efficiency, because we are not machines. We cannot achieve 100% efficiency, but we should always try for 100%. Number 1, kindly turn your mics off जब आप बात नहीं कर रहे हैं, because disturbance थोड़ा सा आ रहा है. Thank you very much. So our first task should be, you should figure out 3 to 4 most important tasks of the day. Let me tell you my complete story first, right? Are you guys able to see me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. In this past 4 or 5 years, I have led team, I've led people, I have led myself. I became boss of my own, and it became a very big challenge for myself to achieve efficiency. Because कई बारी, many a times we write a lot of tasks कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये मीटिंग करना है, ये वाला टास्क करना है. बट एक्चुअल में at the end of the day जब हम देखते हैं कि यार चीजें हो ही नहीं होती हैं, हमारा 60%, 70% काम नहीं होता, 50% काम नहीं होता, एंड फील लाइक कि यार तो हुआ ही नहीं. एंड गेस व्हाट, द वर्स्ट पार्ट इज, उसकी वजह से हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नेक्स्ट डे और काम नहीं होता है किसी के साथ? Yes, sir. While studying, sir, definitely it happens. Exactly, that happens. And you know what, this is a belief cycle, right? This is a belief cycle. Let me tell you, belief cycle, beer cycle, किसी ने सुना है? BEAR, beer cycle. Okay. आप लोगों को मेरा, just a second, if I'm able to show you guys, I'll show you this simple thing. This is taking time. Okay, leave. इसमें टाइम लगेगा. मैं आप लोग को सिंपल तरीके से समझाता हूं, ठीक है? Supposedly, BEAR means B is here, E is here, A is here, R is here, right? You have to make a circle on your sheet. And B means belief, E means enthusiasm, A means action, and R means results. Whenever we are believing in something, that gives us enthusiasm. Am I right? And with enthusiasm, we take a lot of actions. Am I right this way? And when we take actions, Yes, we get results. Yes? And when we get results, it in turn gives us what? Increased belief. The more we believe, the more enthusiastic we become, the more action we take, the more results we get, right? BEAR. The good thing about this cycle is the better we perform it on regular basis, utna zyada compounding effect it will give us. If I study 4 hours a day, 5 hours a day, and I score 90 out of 100, I feel so very confident that yes, agar 5 padunga, to I might become first, I might come first, I might score 100 out of 100. That is the biggest motivation of a topper, right? That is the biggest motivation of a topper. Because I have been one of the toppers in my class. I have, like, anyone heard of VMC? Vidya Mandir classes? Yes, sir. हो सकता है, Yes, हो सकता है आप में से Yes, किसी ने sir. सुना हो. उनका एक रीशफलिंग टेस्ट होता है. At some point of time, I was one of the failures. Teacher used to tell me कि यार तू पढ़ता क्यों नहीं है? I used to sit in front
right? But I was never able to score in my 11th standard. My teacher used to tell me, scold me कि यार तू पढ़ता क्यों नहीं, कभी पढ़ भी लिया करो, मजाक उड़ाता था. And you know what? Things changed. My work hours changed, my study hours changed, and you know what? In 12th standard, in the reshuffling test of 3,500 people, I was ranked 6 in VMC. Why? Because I was studying 14 hours a day. और वो रिजल्ट ऐसे नहीं मिला था, वो बियर साइकिल फॉलो करके मिला था. I was studying 14 hours a day. Everything else was side. मेरा फोन साइड था, मेरा सब कुछ साइड था. I used to take only 20 minutes for breakfast and 20 minutes for dinner. Nothing in between. Every single day I was on the table studying for my exams. I was doing 2 questions at a time in my classroom when I knew कि मुझे ये मॉड्यूल सॉल्व करके लेके जाना है. Otherwise मेरा जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा. टीचर जो पढ़ा रही है दैट इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू बिकॉज आई एम स्ट्राइविंग फॉर समथिंग बिग. आर यू गेटिंग मी? सो इस दौरान मेरे को ये बियर साइकिल पता चला. अगर इस चीज की बुरी बात क्या है, इफ यू आर नॉट एबल टू बिलीव, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट enthusiasm, if you're not able to get that action, आपको रिजल्ट कम आएगा. and with reduced results, with small results, आपका जो बिलीफ है वो कम हो जाएगा. बिलीफ कम होने से आपका enthusiasm और कम होगा, और कम एक्शंस लोगे, और कम रिजल्ट्स आएंगे. and that is the biggest loop that a failure is trapped into. क्यों? फेलियर को पता है यार पास ही नहीं होना. एक मीडियोकर बंदे को पता है यार मेरा मार्क्स ही नहीं आना. सही बोल रहा हूं? दैट इज द मेजर चैलेंज. So हम लोग को चैलेंज से बाहर आना है. Now, are you guys able to see the presentation now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So हमारा जो टास्क है वो क्या है? सबसे पहले 3 से 4 मेजर इंपॉर्टेंट टास्क हम लोग को फिगर आउट करने हैं. सारे काम नहीं लिखने, सारी चीजें नहीं लिखनी, या फिर बताऊंगा कैसे करेंगे. सारे काम लिख लो पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा एलिमिनेशन टास्क. ठीक है? फिगर आउट 3 to 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, गिव देम प्रायोरिटी नंबर. ठीक है? इफ वो टाइम बाउंडेड है, फॉर एग्जाम्पल ये सेशन है, ये 3 से 4 ही हो सकता है, 2 से 3 ही हो सकता है. सो उनपे टाइम स्लॉट्स दे दो कि यार ये तो 2 से 3 बजे ही होगा. या फिर इफ यू आर हैविंग दी फ्रीडम कि यार मैं कभी भी कर सकता हूं, तो पुट द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क सबसे पहले. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट डे छुट्टी है. ठीक है? 8 घंटा आपने पढ़ना है एग्जाम्पल के लिए, 3-4 घंटा मस्ती करना है, 3-4 घंटा और कोई क्लास लेना है. तो अगर आपके पास फ्रीडम है तो यू शुड पुट द 8 आवर स्टडी थिंग पहले. वो टास्क आपको पहले रखना है. देन 4 इज एग्जीक्यूट. हम लोग को उसके ऊपर काम करना है. देन कोई भी काम खत्म होने के बाद वी हैव टू कट डाउन द टास्क कंप्लीटली, राइट, विद प्राउड कि यार ये काम तो मैंने खत्म कर दिया. व्हेन वी हैव छोटे छोटा अचीवमेंट्स ना, वी आर टेंड टू गिव मोर व्हिच वाज वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवरसेल्व्स. ठीक है? जब छोटा सा आपको अचीवमेंट मिलता है तो आप ज्यादा इनपुट डालते हो कि यार अब और ज्यादा मिलेगा, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, राइट? नाउ 5 इज कट डाउन इज टास्क कंप्लीटेड. नाउ 6 इज कीप चेक इन एवरी 2 hours. सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या होता है? द सबसे बड़ा चैलेंज विद मोस्ट ऑफ अस इज वी डोंट कीप अ फीडबैक कि यार मैंने जो चीज प्लान किया था, अब मैं जो चीज कर रहा हूं वो कितना हुआ, राइट? आज अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा पीछे अगर कोई काम चलता है तो वो डिजाइनिंग का और इन सब चीजों का होता है. डिजाइनिंग का, ब्रांडिंग का, सोशल मीडिया थिंग, राइट? बट मेरा काम कभी भी डिले नहीं हुआ, ओनली विद वन एडिटर. Why? Because I was always keeping the check on my editor that I gave you this task. This task was supposed to be done in 30 minutes. This is 35 minutes now. What the hell are you doing right now? Getting me? Getting me? Yes, sir. मैं उसको एक टाइम भी फोन नहीं उठाने देता, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम आज होना चाहिए, राइट? सो इम्प्रोवाइज. अब फीडबैक रख लिया हमने, हर 2 घंटे में फीडबैक रखा कि यार मेरे को ये वाला चैप्टर पढ़ना था, एंड दिस चैप्टर शुड हैव टेकन मी 2 hours ओनली, एंड इट इज 1 hour राइट नाउ. ठीक है? 1 घंटा हो गया है, एंड आई एम नॉट एट 50% स्टेज कि मेरा 50% नहीं हुआ है, एंड यू आर एस्टिमेटिंग कि यार अभी तो 1.5 घंटा और लगेगा. दैट मीन्स यू आर रनिंग 30 minutes लेट, राइट? सो रीशेड्यूल. वहां पर टाइमिंग्स को चेंज करो कि यार इट शुड हैव टेकन दिस टाइम. ठीक है? तो मेरे को अब आधा घंटा मैंने यहाँ पे टाइम पास किया, अब मुझे आधा घंटा कहीं से काटना पड़ेगा. कहां से काटूंगा? नेटफ्लिक्स से.
कहां से काटूंगा? चिल से. कहां से काटूंगा? यूट्यूब से. गेटिंग मी गाइस? Yes, ओके sir. Yes, sir. ओके, चलो. improvise on the fly, improvise करेंगे, then analyze how efficient you were at the end of the day. At the end of the day, no one superhuman. कोई यहाँ पे शक्तिमान नहीं है, कोई यहाँ पे हनुमान नहीं है, कोई यहाँ पे आयरन मैन नहीं है, राइट? सो 100% एफिशिएंसी तो हमारी नहीं आएगी, ठीक है, बट जितनी भी आएगी 60%, 70%, 80%, हम लोग को एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली क्या ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर रही है या नहीं. ऑल्सो एक चीज और, जब आपके टास्क आपके सामने होंगे ना, तब ज्यादा आप ड्रिवन रहोगे. सो अगर आपकी जिस चीज टेबल पे आप काम करते हैं, उस टेबल के सामने आप एक बोर्ड लगा सकते हो या फिर एक बड़ा सा पेपर, चार्ट पेपर पेस्ट कर सकते हो, उस पर बड़ा बड़ा टास्क लिख सकते हो, तो दैट विल गिव यू अ वेरी बिग एज. नाउ सर हम लोग बोलने के लिए नहीं करेंगे, मैं आपको अपने टास्क प्रायोरिटाइज करके बताऊंगा कि मैंने कैसे करे आज के टास्क एंड हाउ एम आई परफॉर्मिंग दोज देयर. ठीक है, पूरा एग्जांपल लेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन, राइट? हाउ एफिशिएंसी कर ली, नाउ कंटिन्यू द साइकिल 100% एफिशिएंसी के लिए. फिर रोज रोज हम लोग को यही टास्क परफॉर्म करना है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंडिंग योर टाइप. Now we will understand what kind of person you are. There are two kind of people depending upon the kind of goals they set. Number one is the people who will always prefer to set the goals which are in their reach, right? And the second one would be who would always set a task which is out of their reach and they believe कि यार अगर मैं बहुत बड़ा टास्क लूंगा तो मैं उसका कुछ तो कर लूंगा. I would be at some next level. तो दोनों सही है अपनी जगह. I am a person who believes in setting the task in my reach. जब मुझे लगता है कि यार if I'm fighting a person who is much stronger than me, so I don't have any chance of winning, I give up. And I don't have any shame in telling you this thing publicly because many people are like this. लोगों को अचीवेबल टास्क करने में ज्यादा मोटिवेशन लेने का ज्यादा बेनिफिट लगता है कि यार if I'm doing something which is achievable, then I'm more probable to give more efforts, right? If I'm having a person who's just a little bit stronger than me, I can understand कि यार अगर एक सही पंच मार दिया, I win, right? No one's Goku here, right? Who can fight Frieza who's 100 times stronger than himself? No, sir. No, not at all, sir. But we have to get inspiration from him. We can always be Vegeta, right? But we can always take inspiration from Goku. So understand what exactly your type is. Are you a person who wants to set the goals in your reach or out of the reach? You have to understand कि दिन का 3 टास्क जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ सिर्फ वो लिखना है, या फिर 5 टास्क जो मुझे पता है कि अगर भगवान भी उतर के आ जाए तो ये नहीं हो सकता लेकिन फिर भी मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर टाइप. बोथ आर कूल, राइट? बोथ आर कूल, दोनों अपनी जगह सक्सेसफुल होते हैं, राइट? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माय टू डू लिस्ट. देखें मेरा टू डू लिस्ट का एग्जांपल देखें. ठीक है, ठीक है. सो माय टू डू लिस्ट वाज, जितना भी चीजें साइड अगर कर दें, सबसे पहला आई हैड टू कॉन्टैक्ट द क्लाइंट एंड गेट द अप्रूवल ऑफ द वर्क. ठीक है. Second task was coordinate with the team. I had to tell them what work needs to be done, how it is needs to be done, till when you need to complete it, and I have to keep a proper feedback in every single hour कि यार कितना हो गया, क्या हो गया. Getting me? Third thing was P2 session which we are conducting right now. Getting me? Fourth thing is meeting with the client, जो कि 12 बजे था बट अब पोस्टपोन हो गया. Number 5 is a podcast with a Singaporean trainer जो कि 7 बजे है शाम के. ठीक है. Then is the chill time, जो मुझे मस्ती करनी है, चिल करना है. उसके अलावा I create videos on YouTube जो मैं कल नहीं डाल पाया, so I have to shoot a YouTube video and I have to upload it. And then comes the miscellaneous things like खाना पीना या फिर घर वालों ने कोई काम बोल दिया. You cannot deny that, right? You cannot deny that. Getting me? I will also tell you the elimination matrix जो आप लोग को हो सकता है पता हो. Getting me? Just एक out of the context question, are you guys liking this session or not? Yes or no? Yes, sir, a lot. Yes, sir. Actually. Yes, sir. Okay, okay. Useful लग रहा है आप लोग को कि हाँ practical बात कर रहा है ये बंदा? Yes, sir. Yes, sir. Of Yes, course. sir. Okay. Definitely. Cool. So let's understand कि यार मैंने अपना ये 8 चीजें लिख लिया, but this is आप लोग को देख के लगने रहा कितना overwhelming है यार, क्या busy schedule है. Yes, sir. आप लोग ने अगर कभी टास्क लिखा हो तो ऐसे ही लिखा होगा और देख के आप लोग को लगता होगा कितना सारा काम है, बाप रे.
इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ इसको कट शॉर्ट करने का. दिस इज टास्क इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स या फिर टास्क एलिमिनेशन मैट्रिक्स. कौन नो बोल रहा है यार? if you feel the session is not giving you any kind of value, then you can leave, my brother. No problems at all. I don't want to waste your time. No problems. Let's get back to the task important matrix. आपको एक चीज बताता हूँ. If ever you are attempting any objective kind of objective paper, right, जिसके अंदर आपको options मिलते हैं A, B, C, D, and if you are not able to analyze कि यार मैं कौन सा टिक करूं, which is the right answer, start the other way around. Start with एलिमिनेशन कि यार कौन सा आंसर नहीं हो सकता. गेटिंग मी? दिस इज अ वेरी कूल ट्रिक जिसको यूज करके मैंने काफी सारे मार्क्स जेई के अंदर बटोरे थे. गेटिंग मी? सो यू कैन यूज दिस. अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन से काम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले स्टार्ट करो एलिमिनेट करने से कि कौन से काम यार नहीं हुए तो चल जाएगा. गेटिंग मी? तो मैंने क्या करा, अब टास्क एलिमिनेशन मैट्रिक्स क्या कहती है कि देयर आर 4 काइंड ऑफ टास्क्स, राइट? नंबर 1 is the ones which are important as well as urgent. Are you able to see my cursor? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. The tasks which are important and urgent. This is simple indication I have to do this thing right now. Getting me? For example, कल मेरा पेपर है, आज मुझे पढ़ना है. Urgent भी है, important भी है. पढ़ना पड़ेगा, yes or no? Yes, sir. Of course, sir. Yes. Second type of task, which is important but not urgent. मेरा एक एग्जाम आने वाला है, लेकिन आज से 2 महीने बाद है. इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है कि मेरे को उसके लिए आज ही पढ़ना है. तो क्या मैं उसको प्लान कर सकता हूँ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मेरा आज बहुत ज्यादा बिजी है तो मैं उसको कल के लिए या फिर आने वाले वीक के लिए प्लान कर सकता हूँ, राइट? थर्ड थिंग, जो काम अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने बोला है कि बाजार से धनिया लेके आना है. ठीक है, अगर आपकी मम्मा आपको बोले कि बेटा धनिया लेके आ जा, क्या करना है? योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डेलीगेट. मम्मी किसी और को भेज दो, मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, प्रोवाइडेड यू आर नॉट वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड चिल. ओके, गेटिंग मी? नंबर 4, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट. योर फ्रेंड्स कॉल अप एंड बोलता है कि यार आने वाले 1-2 वीक में मिलते हैं ना, कहीं घूमने चलते हैं. एंड इफ इन योर ओपिनियन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट, तो ड्रॉप दैट, एलिमिनेट दैट टास्क if you actually want to make difference in coming 10 years. Are you guys getting me? Yes, sir. So this is how you should Of course, sir. eliminate, prioritize, and you should decide कि यार कौन सा प्लान करना है. ठीक है, and try to delegate as much as possible. ठीक है. Now let's move on. Eliminate the non-urgent ones. अब मुझे eliminate करना था यहाँ पे कि my to do list के अंदर से कि यार इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि अगर मैं नहीं भी करूंगा तो क्या चल जाएगा. ऐसा कौन सा टास्क है जो मैं अगर किसी और को दे सकता हूं तो चल जाएगा. ऐसा कौन सा टास्क है अगर मैं प्लान कर लूं तो चल जाएगा. क्या था वो? क्लाइंट वर्क अप्रूवल मुझे लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन विद टीम मुझे ही करना पड़ेगा बिकॉज आई एम द लीडर, P2 सेशन मुझे लेना पड़ेगा, मीटिंग विद द क्लाइंट मुझे लेनी पड़ेगी, पॉडकास्ट मुझे करना पड़ेगा. बट चिल टाइम साइड हटाओ, नहीं भी करेंगे एक दिन के लिए, चिल चल जाएगा. अगर यूट्यूब वीडियो आज नहीं डाल पाया कोई बात नहीं, कल डाल सकता हूँ, प्लान कर सकते हैं. मिसलेनियस टास्क क्या है? मिसलेनियस टास्क इज द वाटर. जो भी टाइम बचेगा उसमें हो जाएगा. और ये सच है कि टाइम बचेगा, इतना बिजी होने के बाद भी आपके पास टाइम बचता है. गेटिंग मी? तो लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं कि ये जो टास्क है ना, इनको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं. ठीक है, इन टास्क को हम लोग करते हैं कि 1 2 3 4 प्रायोरिटीज के साथ हम लोग लिखते हैं कि अब टाइम स्लॉट डाल देते हैं, बिकॉज क्योंकि ये टाइम बाउंडेड एक्टिविटीज है. because these are a few things which are supposed to be done on a particular time. For example, this P2 session, ये 2 बजे होना है तो 2 बजे ही होना है, राइट? सो कैसा लिखा? सबसे पहला टीम कॉलिंग, मुझे 11 बजे टीम को कॉल करना है. ओके, ठीक है, पहला टास्क है. सेकंड टास्क, मैंने थोड़ा सा टाइम और ब्रेक लेके दिया. ठीक है, इसके बीच में हम लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. मीटिंग करना था क्लाइंट से 12 से 1. गेटिंग मी? ठीक है, उसके बाद मुझे क्लाइंट से अप्रूवल लेना था काम दिखा के. वो कितने बजे कर सकता हूँ मैं? 1:30 PM. सेशन कितने बजे से कितने बजे है? 2 to 3 PM. पॉडकास्ट कितने बजे से कितने बजे है? 6:30 बजे से 8 बजे. ठीक है, जो उसमें पहले से सेटिंग्स करना पड़ता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So these are the 5 main rocks that I had to put in my aquarium. Getting me, guys? अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें मेरे को फिल इन क्या करना है? YouTube शूट एंड अपलोड, जिसके अंदर 3 घंटा लगेगा. तो अगर मुझे टाइम मिला
फिल इन कर पाया तो मैं कर दूंगा, वरना मैं प्लान कर लूंगा। So, नंबर 2, मिसलेनियस एक्टिविटीज जो मुझे मेरी मिलेंगी या मेरे क्लाइंट की मिलेंगी या मेरे को घर से मिलेंगी, वो मैं कर लूंगा। थर्ड थिंग इज चिल टाइम। मुझे बीच में टाइम मिला तो आई विल फिल इन, अदरवाइज दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। गेटिंग मी? यस और नो? Yes, sir. So what we have successfully done Yes, is sir. ऐसे दिखने वाले दिन को we have made it look like this. Now five of these points किस किस को ये अब लग रहा है कि doable है? Yes, sir. कोई भी कर सकता है जिसको ये काम आता है, yes or no? Yes, sir. Definitely. Yes Can do, or sir. no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. Great. Okay, now let's do a task, right? Let's plan your day. अब आपको करना क्या है, आपको आपका कल का दिन प्लान करना, ठीक है? उसके अंदर आपको करना क्या है कि आपको अपने टास्क लिखने हैं, मेन रॉक्स जो आप करने वाले हैं, शेड्यूल, ठीक है? इफ देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम जिसके अराउंड ये काम करना जरूरी है, कोई एक क्लास है जिसका टाइमिंग फिक्स है, तो आपको वही टाइम रखना उसके आगे, ठीक है? अगर वो काम को कोई लेके बंदिशें नहीं है आपकी, यू आर नॉट बाउंड टू डू इट एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करेंगे उसको, ठीक है? कि क्या ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम गिविंग यू 2 minutes, राइट डाउन those 5 or 4 or minimum 3 tasks that you want to do tomorrow, and we will plan it right here. I'm giving you 2 minutes. Go. Sir, I have a question. Questions यार एंड में कर लेंगे, अभी एक्टिविटी कर लेते हैं। Questions I will Activity take. के बेस्ट पे। Okay, ask me. चलो और लोगों को हेल्प हो जाएगा। Sir, अभी फिलहाल तुम्हारी priority is studying, right? And we feel like not to do it. So what to do in that case? बड़ी Exactly, गंभीर sir. This is समस्या the है। main thing. It's like यही चीज मेन है सर। इट्स लाइक काम होता है, पता है करना पड़ेगा, बट वही है ना, मन नहीं करता है सर। लाइफ काफी मोनोटोनस हो चुकी है कोविड के चक्कर में, एंड इट्स लाइक वो जो रेगुलर काम है ना, इट हैज बिकम अ रट, सो दैट एंथुजियाज्म इज नॉट कमिंग, बिकॉज वही है, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। इट्स अ वेरी बेसिक फैक्ट सर, काफी बच्चे मेरे से अग्री भी करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट द टीचर्स आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स, टीचर भी अपने एफर्ट डाल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नहीं हो रहा है, यू नो, दैट ऑनलाइन इज नॉट हेल्पिंग। आप ऐसे समझ लो ना, जैसे गेम्स हम ऑनलाइन खेलते हैं, अब मैं बोलूं आज आप खेलते हैं रियल लाइफ में, नहीं आएगा ना मजा, मतलब हम वैसे खेलने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। और वही खेलने वाले भी वही सीन होता है ना, कि यार वही है, सब लोग पढ़ रहे हैं, तुम देख रहे हो, तुम प्रैक्टिकल्स कर रहे हो। लाइक मी, आई बिलोंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजिकल लाइन, सो देयर सर हमारा पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम रहता है, जहां पर हम कुछ पढ़ते हैं, फिर क्यूरियोसिटी आता है कि चलो यार आज लैब में करके देखेंगे, करते हैं, नहीं होता है, से तोड़ के आते हैं, फिर भी मजे आते हैं, फिर सीखते हैं, डांट खाते हैं, समझ आ जाता है, मजा। अभी सर ऐसा हो गया है कि क्लास के बीच में कभी घर पे भी कुछ चल रहा है, फिर वैसे ही दुनिया में चल रहा है, फिर ये सब चीजें हो रही हैं सर। वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन वही है ना, बियर का जो एंथुजियाज्म है वो बहुत डाउन हो, एंड इट इज टेकिंग yes sir. I totally have agreement. I totally agree with Kamlesh bro, ठीक है? Because to be honest, मैंने 4 साल इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है, पर 4 साल में पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है? मेरा अगर पूरे 4 साल का अटेंडेंस अगर मिला देंगे तो वो शायद एक सेमेस्टर का अटेंडेंस भी नहीं बनेगा, ठीक है? एंड आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद दैट, बाय बिकॉज मेरे कॉलेज के अंदर अटेंडेंस का इशू नहीं था, एंड आई वाज कंप्लीटली इनटू बिजनेस। मैंने फर्स्ट ईयर से बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, सो आई वाज ऑलवेज इनटू बिजनेस। सो मैं 2016 से ही बिजनेस कर रहा हूँ, और देयर हैज बीन अ टाइम वेयर आई वेंट, ये आई होप कोई टीचर नहीं होगा, और अगर होगा तो वो मुझे माफ कर देगा ये सब बोलने के लिए। आप लोग को मैं मोटिवेट या आप लोग को मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू द वेज ऑफ एजुकेशन हैव चेंज्ड, स्पेशली इन 2020 2021, right? The people who secured highest scores are not the ones who secured the highest packages in my class. The person who was having 2 backs is placed in a company named Grofers with a package of 24 lakhs. 2 backs के साथ मेरा भाई पेपर के अंदर, वो और मैं उसको आपस में देखते थे कि भाई तू नहीं पढ़ के आया, मैं भी नहीं पढ़ के आया, बस चलता है, मस्त, मजा आएगा, अब देखते क्या होगा। एंड मैं स्कूल तक बहुत पढ़ा,
बहुत पढ़ा, because at that point of time I knew I have to get a good college. But when you have to, if you want to get into a good company, क्योंकि I don't know whether which field you exactly belong to, all of you guys. So मैं general example लेके चलूंगा कि मैं engineering के example लेके चलूंगा. I don't know how many of you guys belong to engineering field, but just theoretical education will not get you the job that you are looking for. Maybe you want to do a business, maybe you want to do a business, maybe you want to do freelancing, maybe you want to do a job. So what people are looking for right now is skills, right? People are looking for skills. So मैं आप लोग को एक चीज बोलूंगा that it has happened with me. Like I was going for internal practical and the teacher was watching me for the first time. I was watching the teacher for the first time and I was questioning. टीचर मेरे से क्वेश्चन कर रहा था, तुम इसी क्लास के पार्ट हो. एंड मैं भी नहीं जानता था, मैं मैम से पूछ रहा था कि मैम कौन सी क्लास के अंदर जाना है. एंड आई डिडंट न्यू कि वो मेरी टीचर है और मैं इंटरनल प्रैक्टिकल देने आया हूँ एंड सेमेस्टर का. एंड ऐसी चीजें हमारे साथ हुई हैं, राइट? फिर हमने टीचर्स को थोड़ा सा कन्विंस किया दैट आई एम डूइंग समथिंग ऑन माई ओन, प्लीज हेल्प मी, लेट मी सिट इन द क्लास. सो इफ योर college or if your school is not very much particular about the attendance and you can manage things on your own with your own taste, then you can go for it. If you are not allowed to bunk classes or if you are not allowed to skip classes and do something of your own या फिर अपने स्टाइल से पढ़ने का, then this is actually something which cannot be changed. Because if you are into an education system, you have to go with the things that are being done in that phase, right? बट मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि आज जिनके पास स्किल था उनके पास ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, जॉब्स भी हैं, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज हैं और चीजें हैं, बिकॉज दे वर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, राइट? यू आर नॉट लिसनिंग टू मी बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड स्कोरर, गेटिंग मी? You are listening to me because I have more practical life experience than any other 23-year-old out there. I passed out in 2020, okay? And मैंने अपना कॉलेज का फाइनल ईयर का जो इंटरनल्स होता है, फाइनल ईयर का जो वाइवा होता है, वो मैंने अपने इंटर्न्स के सामने, अपनी टीम के सामने, अपने ऑफिस में दिया है. एंड मेरी टीम मुझे देख रही थी कि यार ये जो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टीचर के सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे, एंड दे वर लाफिंग. And I feel really proud about that, पता है? I feel really proud about that. Because बाकी लोग जब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जॉब नहीं लग रही, जो लोग जाने वाले थे गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स ने डिले कर दिया सब कुछ, I was happy doing my business. I was happy hiring people. I was happy making money. I was happy making my own name. Why? Because I prioritized what is more important for me. If you feel the education you are into right now, I will give you a very practical solution. If you feel कि जो एजुकेशन के अंदर अभी आप हो, आप उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहते हो, and if you want to make name into that, do it. And if you feel you are not going to do it for a very long time, or if you do not feel like you don't feel that kick in that field, start prioritizing something else. As simple as that. Because once the college ends, once the school ends, once the thing ends, you'd be left with nothing but a degree with written some numbers over it, जिसका तुम कोई practical use नहीं करने वाले. I don't have my degree, I don't have my numbers. Have you guys asked me कि कितना marks आया आपका? नहीं. Why? Because it doesn't have any significance. Have you guys asked me कि 12th में कितना score आया तरुण? No. No significance. काश मुझे ये चीज पहले पता होती. So this is a point of realization, understanding what exactly you want post 5 years down the line from yourself. How do you want to see, how Anjali wants to see herself post 5 years down the line? How Kamlesh wants to see himself 5 years, 10 years down the line. कि यार मैं ये करना चाहूँ. अगर आप वो चीज कर रहे हो, that is well and good. Start prioritizing it. If not, find that thing. Prioritize finding that task. आपका task क्या है? उस चीज को पता लगाना जो चीज आपको करनी है. वो चीज कैसे मिलेगी? You have to try multiple things at a time. Getting me, guys? And Yes, sir. education classes, this is something which is inevitable. Yes, sir. Just like Thanos. We cannot deny that. We have to go with that 5-year blip. Marvel fans को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ. Okay,
So have you guys write down your tasks? अपना टास्क लिख लिया आप लोग ने? Yes or no? Yes, sir. Okay. आप लोग ने वो जो टास्क लिखे हैं, कितने टास्क लिखे हैं? 3, 4, 5 कितने? 6. अब उसके अंदर से जितने भी आप लोगों ने लिखे हैं, इसके कौन बोला था 6? मैं सर, कमलेश. ओके कमलेश. ठीक है कमलेश, आपने 6 टास्क लिखे हैं. कमलेश टास्क क्या है वो बताओ, हम लोग डिस्कस करेंगे. कमलेश का कल का दिन प्लान करेंगे. आर यू गाइस रेडी? यस और नो? Yes, sir. ओके Yes, sir. कमलेश, व्हाट आर योर टास्क फॉर टुमारो? टेल मी. Sir, like, should I just randomly say it, or the way I've organized what I consider is important? ऑर्गेनाइजेशन पे हम आएंगे, नेक्स्ट स्टेप है वो. सबसे पहले बात करते हैं कि टास्क क्या है कल के. ठीक है, और हाँ, गाइस अपना इसके अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे. ठीक है, बताओ. Sir, college se related, I've got 2 assignments to do, and both of them are quite elongated ones. ठीक है. So I kind of collaborated today and tomorrow दोनों के tasks. So I might Okay. start it today, but yeah, I'm kind of procrastinating because again, वो enthusiasm नहीं. अब एक चीज बताता हूँ आप लोग को, जितना लंबा टाइम लोगे किसी काम को करने के लिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है. इफ यू टेक 1 month to do a particular task, तो वो लास्ट के आने वाले 3-4 दिन में कंप्लीट होगा. यस और नो? हाँ. अगर Yes, sir. एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए 1 महीना लेफ्ट है, तो उसकी प्रिपरेशन कब खत्म होगी? एग्जाम से 1 मिनट पहले. तो वही कल ही स्टार्ट करना. अगर एग्जाम को कम होने में अगर 5 दिन का समय है, तो कितने दिन में प्रिपरेशन हो जाएगी? 5 दिन में. 3 में तो 3. अगर पता है आधे घंटे में एग्जाम होने वाला है ना, तो मेन चीजें पढ़ के आप बैठ जाओगे, बोलोगे मैं रेडी हूँ. So it is all about how much time you give. It is like a gas. जितनी स्पेस दोगे उतना ज्यादा फैल जाएगा. ठीक है. So if you actually want to complete that task ना, तो सिर्फ आज का डिसाइड कर, कल का या तो रात को डिसाइड कर या कल सुबह डिसाइड कर. सिंपल. ठीक है, तो हम लोग आज की बात नहीं करेंगे. सपोज दैट हमें कल एक टास्क करना है. ठीक है, एक असाइनमेंट करना है. ठीक है, आज एक असाइनमेंट हम लोग को आज करना है कमलेश. ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमारे सुबह के 8 बज रहे हैं, हम उठ गए, मस्त चाय पी लिया. ठीक है, अब अपने को टास्क फाइनलाइज करना है. ठीक है, तो क्या क्या टास्क है इन हैंड बताओ जल्दी. तो सर भैया it's again one of the college assignments. दूसरा है सर, I lately have been a bit interested into how cryptocurrencies work, but I have no idea about it, so I want to know about it. Nice. I want to Okay, know. understanding. ठीक है. This is the second task. Third task is I have a pet dog and I have to go to the doctor once just to have a few checkups. Okay. That is one of the. This is the third task. Fourth task is I have to go to the gym, but the problem is I have to renew my card again, so I have to go really far. और वो काफी टाइम से जिम पास में है, पर जो कार्ड जहाँ पे रिन्यू होता है वो काफी दूर है. तो वो जाना है, वो कब से सोच रहा हूँ जाने के लिए. तो फिर let's say that I'm going to do it tomorrow. So sir, we are through 5 tasks right now, right? Or is it 4? 4. Fifth concept. हाँ, 4 tasks. Fifth is I kind of work for a friend of mine where my basic work is to pitch some of the emails to actually get responses from the clients. So cold pitching, cold emailing. Exactly, sir. So around there are around 4 companies that I have to pitch an email to. So let's just. So you're working as a virtual assistant right now? Yes, sir. Absolutely. Okay, that's cool. That's really cool. ठीक है. इसके अलावा कोई टास्क है? सर टास्क yes, इसके अलावा वही है. Again, free time. You know, जो आपने लास्ट वाला बोला था कि हाँ, there is a series that I actually. तो बाकी miscellaneous है, टाइम पास है, वो सारे काम है. ठीक है. तो ठीक है. अब यार पेपर उठा लो आप लोग. ठीक है. उस पे सारे के सारे टास्क लिखो. ठीक है. हम लोग कमलेश को हेल्प करेंगे उसका करने में. ठीक है. उसके रेफरेंस पे आप लोग अपना अपना टास्क डिसाइड कर सकते हो. ठीक है. नंबर 1, कमलेश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है ये बताओ. सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई वुड कंसिडर कॉलेज का काम एंड द डॉक्टर का अपॉइंटमेंट. ठीक है. अच्छा, एक चीज और ये देखने वाली चीज है कि ये कोई भी टाइम बाउंड काम नहीं है. ठीक है. ये काम जब भी चाहे वो कर सकते हैं, रात को 12 बजे भी कर सकते हैं. इट इज कंप्लीटली अप टू मी. ठीक है. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लॉकडाउन थिंग एंड अबाउट टाइम मैनेजमेंट. इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, आप बहुत अच्छे से टाइम निकाल लोगे. और अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर
कॉलेज जाना, उसके अंदर टाइम लगाना, उसके अलावा ट्रैवल के अंदर टाइम जो जाएगा वो अलग होगा, फटीग हो जाओगे, बॉडी फटीग हो जाएगी, वो अलग होगा, ठीक है। वो सारी चीजें बच गया टाइम यार, कितने खुश होने चाहिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, कॉलेज असाइनमेंट। सो सबसे पहली प्रायोरिटी नंबर 1 इज पेपर पे लिखना है क्या, कॉलेज असाइनमेंट। कॉलेज असाइनमेंट होने में कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली? Sir, I know that I wouldn't work very efficiently. Like there's no use lying in front of you. I will be a bit distracted. So full focus से अगर करूँ तो very frankly I might actually end up finishing it within an hour also. But why yeah, since I'm at home again, sir, I feel I personally I'm a hosteler who used to. उसका भी एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको 1.5 घंटा मान के चले, 2 घंटा मान के चले, 2 घंटा इज कूल इनफ, ठीक है। इसको करना पार्ट्स में कर सकते हैं। जस्ट टू इन्फॉर्म यू सर, साइड बाय साइड ऑनलाइन क्लासेस भी चलते रहते हैं बिकॉज अगेन कल मंडे है, तो ठीक है। क्लासेस का टाइमिंग क्या है सर? सुबह लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 10 एंड 4-5 बजे तक खत्म हो जाता है। 4 से 5 बजे तक, ठीक है। क्या इसके अंदर से ऐसी कोई क्लास है जो आपको लगता है कि यार वो नहीं अटेंड करूंगा चलेगा, या पूरी की पूरी क्लास अटेंड नहीं करूंगा चलेगा? सर देखो, अटेंड तो सारे करने पड़ते हैं, बट हाँ पेइंग अटेंशन वाला फैक्टर आता है जो जरूरी नहीं है इन वन ऑफ द क्लासेस, बिकॉज आई फील ठीक है, तो मतलब दैट इज एज गुड एज लेफ्ट, ठीक है। हाँ, इट इज दैट इज एज गुड एज लेफ्ट, ठीक है। उस टाइम के अंदर अगर हम लोग चाहें तो उस टाइम बैठ के असाइनमेंट कर सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बड़ा रॉक क्या है हमारा, क्लास, जिसमें हमें प्रेजेंट रहना पड़ेगा, राइट। टाइम कितने बजे से कितने बजे है? 10 to 4। 10 to 4 सर, ठीक है। 10 to 4 हमारा यहाँ चला गया, लेकिन इसके बीच में हमारा असाइनमेंट हो जाएगा, यस और नो? अगर हम लोग तरीके से करेंगे हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर 4, ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ 1 घंटे का गैप लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइव करते हैं बॉडी को, बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, ठीक है। उसके बाद कैन वी गो टू डॉक्टर फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द डॉग? एब्सोल्युटली ठीक है। सर, उसमें कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा उसमें? सर बहुत पास है, सो लेट्स से 15 मिनट्स गोइंग, 15 मिनट्स कमिंग, एट मैक्स 40 मिनट्स। 40 मिनट्स, 1 घंटा ले लें, ठीक है। क्या पता डॉगी नखरे करने लग जाए, वी नेवर नो। ये भी है, डॉगी के अपने टेंट्रम्स हो सकते हैं, राइट। हाँ वो भी ठीक है। तो 5 बजे अगर निकलेंगे तो 6 बजे हम लोग घर पे होंगे फॉर श्योर। हाँ ठीक है, ठीक है। 6 बजे घर पे आ गए, और क्या टास्क बच रहा है? काम सर भाई, एक तो ईमेल पिचिंग हो गया। ईमेल पिचिंग। अब क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने फन के लिए करना चाहते हो, दैट कम्स अंडर समथिंग। जब आपको यार अपना टेंशन थोड़ा रिलीव करना है, जब आपको थोड़ा सा मस्ती करना है, उस टाइम पे यू कैन रिप्लेस चिल विद दैट क्रिप्टो को रिसर्च करने वाला चीज, राइट। जी सर। लेकिन बोरिंग काम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अगर जिसका मन नहीं किया रात तक, वो काम बिल्कुल ही नहीं होगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएगा। वो क्या है? ईमेलिंग। हाँ। अब क्या करना है? मैं कहता हूँ 6 बजे आए, थोड़ा आधे घंटा चिल किया, ठीक है। 6:30 बजे चिल करने के बाद ईमेल पे काम करना शुरू किया। कितना टाइम लगेगा ईमेल खत्म करने में? सर अगर 4 हैं तो shouldn't take much time, let's say 2 hours। 2 घंटा। तो 6:30 से 8:30 डन है, डन है। 8:30 तक ही विल बी डन विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ थोड़ा सा चिल कर लिया फिर से। अगेन आई एम गिविंग इन ऑल द गैप्स, खाने का, पीने का, मस्ती करने का, फोन चलाने का, सारा गैप्स एंड सारा बफर लेके बात कर रहे हैं, राइट। एंड इट इज ओनली 8:30 एंड वी स्टार्टेड विद 10, राइट। सो अभी दिन का बहुत कम टाइम हुआ है, राइट। अब चलो आगे चलते हैं। अब आ गया खाना पीने का टाइम, खाना पीना कर लिया, ठीक है। रादर मैं आप लोग को एक चीज और बोल देता हूँ। आई एम अ गाय जिसको पता था कि अगर वो बैठ के कोई वीडियो देख रहा है ना यूट्यूब पे, कुछ भी कोई चीज सीखने के लिए, तो मैंने टाइम्स आई फील लाइक मैं ये भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एंड आई एम अ गाय लाइक दैट। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं खाना खाते टाइम मैं वो वीडियोस, वो वेबिनार्स, वो ट्रेनिंग, वो जो कोर्स मैंने ऑनलाइन लिया, मैं वो देखता हूं। That is exactly what I do, And sir. Otherwise unproductive। सैल्यूट टू दैट पर्सन हु इज डूइंग दिस थिंग, सैल्यूट टू दिस पर्सन जो वो चीज कर रहा है, खाना खाने के टाइम पे लैपटॉप खोल के काम की चीज सीखना। बिकॉज आई नो वन थिंग कि यार अगर मैं मस्ती के टाइम में अगर मैं मोड में आ गया तो आई वोंट बी एबल टू वॉच दैट ट्रेनिंग वाला पार्ट। बट जब मैं खाना खा रहा हूँ ना, मुझे कुछ देखने के लिए चाहिए, और मैं अगर ट्रेनिंग ले लेता हूँ तो वो मेरा टाइम कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा, ठीक है। दैट वुड बी मल्टीटास्किंग सम काइंड ऑफ, ठीक है, कह सकते हैं। और एक फिनोमेना है, व्हेन आई एम एक्चुअली वाचिंग समथिंग प्रोडक्टिव, तो वही है, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज मेड इन अ वे कि तुम वहां से उछलते रहो इधर उधर, तो इधर उधर फिर ध्यान जाता है। बट व्हेन आई एम ईटिंग एंड वाचिंग, सो इट बिकम्स लाइक हाँ, आई डोंट हैव अ चॉइस। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज सब कुछ हम ऑनलाइन सीख रहे हैं,
और उसी Exactly. टाइम पे बस इंस्टाग्राम पे फ्रेंड का मैसेज आना चाहिए या Right, फ्रेंड का right, एक right. वो आना चाहिए, दिस हैव सेंड दिस पोस्ट टू यू, वो निकलता क्या मीम, ठीक है, एंड वंस दिस मीम की बारी स्टार्ट्स यू कांट स्टॉप लाफिंग एंड शेयरिंग, राइट? Exactly. एंड आई नो दिस फीलिंग बिकॉज आई हैव वो आल्सो पूरा गॉट ट्रैप्ड at इनटू the दिस। back of the head जो तुम्हारे दूसरे प्लान्स थे और वो क्रिप्टो चल रहा था, वो क्रिप्टो अभी हट चुका है, अब वो मीम्स ने टेक ओवर कर लिया है. This is what happened. एग्जैक्टली So this is the thing, you know, in this age of distraction, I am unable to keep myself disciplined because now I feel discipline is no longer in my hands. It has been taken over by these phones and technology. बताता हूँ That उसका is भी the तरीका, उसका भी तरीका बताता हूँ. मैंने सबसे पहली चीज पता है क्या करी? सबसे पहली चीज, I unfollowed all those pages which were addictive. To be honest, मेरा But फिर फॉलोइंग में जाना, द FOMO तरुण शो होता इज है, माय fear of प्रोफाइल, missing out लगता है. द तरुण शो इज माय प्रोफाइल, गो टू माय फॉलोइंग्स एंड Sir, चेक आउट किस I लोग को just did फॉलो that. करता हूँ. I was going through it. I saw one of the reels where you said also कि you know ऐसा क्यों होता है कि फोन मम्मी का टूटा हुआ होता है लेकिन डैड Exactly. से नया Exactly, लेते हैं. So I was going through your profile actually. That happens, right? Real life चीज होता है हमारे साथ. तो I unfollowed all those pages and many times my friends used to send, and ये फन चीज है, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ. My friends used to send me those memes and गजब की बात, वो प्रोफाइल्स प्राइवेट होते थे, तो मैं कहता था हा बना के छोड़ दिया मैंने. दोस्तों को लगता था इसने मीम देख लिया. एंड जब वो पूछते थे यार वो मीम कैसा लगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया था. कहते किस मीम की बात कर रहा हूँ पता है? मैंने कहा भाई पता ही नहीं, प्राइवेट थे सारे प्रोफाइल, मैं फॉलो नहीं करता. कहते तू फॉलो क्यों नहीं करता? आई से वन सिंपल थिंग टू देम कि भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास. as simple as that, because to be honest it might sound rude to you, ठीक है, दोस्ती यारी अपनी जगह रह जाती है, ठीक है, एंड लोग दोस्त उसी को बनाना पसंद करते हैं जो सक्सेसफुल होता है. बिल्कुल ठीक है, ये फैक्ट है. यू माइट नॉट बी हैविंग सम क्लियर विजन इनटू योर आईज, ठीक है, बट मेरे पास सारे गोल्स क्लियर है भाई, मेरे पास नहीं है टाइम. सो अगर मैं आप लोग को प्रोफाइल दिखाऊंगा, कई बार मुझे मीम्स दिखते मैं शेयर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई महात्मा हूँ, ठीक है, बट मुझे पता है कि यार कितना मुझे लग रहा है, ठीक है, और जहां मुझे नहीं लग रहा ना वहां मैं, और मुझे कोई पेज लग रहा है बहुत एडिक्टिव है, ब्लॉक कर दूंगा मैं. सिंपल. अगेन प्रायोरिटी एंड डिसिप्लिन. मेरे लिए जरूरी क्या है, मीम है या मेरे लिए मेरा करियर है? आई हैव टू चूज इन बिटवीन वन. या तो एक्सक्यूज रह सकता है या फिर फोकस रह सकता है, नॉट बोथ. गेटिंग मी? क्लियर विद दैट? सो हमने प्रायोरिटाइज कर लिया काम. 8:30 बज चुके हैं, 9:30 बजे तक खाना खा लिया है, कमलेश ने टीवी देख लिया है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया है, ठीक है. अब कमलेश के अंदर एक इच्छा जागरूक होती है क्रिप्टो के बारे में सीखने की, राइट, एंड क्रिप्टो के ऊपर वो वीडियोस देखना चाहता है, ट्यूटोरियल्स देखना चाहता है. एंड कितना टाइम कमलेश स्पेंड करना चाहोगे इस चीज के ऊपर? सर स्पेंड तो मेरा वही है, लाइक अगेन व्हेन आई वांट टू सर्च अबाउट अ टॉपिक, तो ऐसे होता है ना, यू आर ऑलवेज इन अ डाउट की विच इज रेलिवेंट. So I have this tendency of jumping from one video to the other, thinking that no, this might be better than this one. And somewhere down the lane again, you know, then there are confusions in my head कि मैं बताता हूँ आप लोग को इसका भी एक सोल्यूशन, ठीक है. अलग अलग लोगों की वीडियोस देखने से बेटर है एक ही इंसान को फॉलो करो, उसी की आइडियोलॉजी देखो, जो तुम्हें लग रहा है कि मार्केट में एस्टैब्लिश्ड भी है, नॉलेज भी है, और उसने एक सीरीज बना रखी है, और सीरीज के अकॉर्डिंग देखो. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, नेवर गो विद अ सिंगल पर्सन जिसने सिर्फ एक टॉपिक पे बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है. गो विद अ पर्सन जिसने मीडियोकर वीडियोस बनाए हैं लेकिन सारे वीडियोस बनाए हैं. गेटिंग मी? A very good incomplete answer is not at all good with an average answer which is complete in any sense. Are you agreeing with me on this thing or not? Yes or no? Yes sir. Sir, can you please repeat your point, sir? Anything which is not complete but is very good is never good. या फिर इसको उल्टा अगर बोलेंगे, ठीक है, an average answer which is complete in its own sense is better than any good looking answer or any best answer which is incomplete. Getting me? Yes sir. ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कैसे करना है, लेकिन आपको ये नहीं बताऊं कि कौन सा चूज करना है तो कैसा रहेगा, लेकिन बताता बहुत बढ़िया हूं मैं. वही. उससे बेटर आप कमलेश की वीडियो देखो, कमलेश आपको बताएगा क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है, प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, ट्रेड कैसे करना है, कहां से करना है, कितना टैक्स लगेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, HRX क्या होता है, TRX क्या होता है, किसका प्राइस ऊपर नीचे, क्या चार्ट चल रहे हैं, एवरीथिंग. बिकॉज मैं भी इस चीज के ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ. सही है सर, बनाओ फिर वीडियो, देखता हूँ मैं.
श्योरली ब्रदर, बट मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। जब तक कोई मैं बात मोटा नहीं पैसा सर, नहीं हम भी कमाऊंगा सीख मैं रहे हैं, आप भी बनाऊंगा सीखो। नहीं। ठीक है, ओके। सो गाइस, समझ में आ गया, कमलेश का दिन प्लान कर लिया हम लोगों ने। लास्ट के टाइम में जितना उसको सीरीज लग रहा है, वो टास्क लेके बैठेगा कि यार आज एक बंदे की सीरीज उठा ली है, 5-6 वीडियोस की, 10 वीडियोस की सीरीज उठा ली है, मैं ये 5 वीडियोस देख के उठूंगा। 10-10 मिनट की वीडियोस है, 5 वीडियोस है, 6 वीडियोस है, 1 घंटे का काम है, मैं 1-1.5 घंटे में देख लूंगा। एंड बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी ऑन दिस, आई फील इंटरेस्टेड, तो मुझे देखने में भी टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट? या मुझे बहुत ज्यादा ब्रेक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं खाना पीना उसके बीच में कर सकता हूँ। गेटिंग मी? तो 9:30 बजे से लेके 1 घंटा और 10:30 बज चुके हैं, काम सारे खत्म हो चुके हैं। उसके अलावा जो चीज करना चाहता है कमलेश कर सकता है। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? यस और नो? यस और नो? अब क्या आप लोग कमलेश के ब्लूप्रिंट को देख के अपना कल का दिन फाइनलाइज कर सकते हैं? यस और नो? Yes, कर sir. चुके हैं। कर Definitely, चुके sir. हैं, ठीक है। Already हेल्पफुल done. रहा? हेल्पफुल रहा? यस सर, डेफिनेटली। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हर चीज के अंदर आपने शायद सुना होगा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी किया था। हर हैबिट फॉर्मेशन को 21 डेज लगते हैं। टेक दिस 21 डेज चैलेंज एंड अचीव 90% plus efficiency every single day when you'll follow this routine, and this is something I can guarantee you. 21 दिन तक ये चीज फॉलो करो जो मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से कल का दिन प्लान करा है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करो, एनालाइज करो, जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसको यूज करते हुए अगले दिन का शेड्यूल करो। आप अगर नाइट पर्सन हो, जिसको लगता है कि यार मैं रात को प्लान करूंगा अगले दिन का, तो वैसे करो। दिन को लगता है तो दिन को प्लान करो, बिकॉज दिन को हमारे पास एनर्जी ज्यादा होती है, वी आर मोर ड्रिवन, राइट? ठीक है, इस चीज को 21 डेज तक फॉलो करो, हैबिट फॉर्मेशन होगी, एंड आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि 90% प्लस एफिशिएंसी आपकी 21 दिन के बाद से आनी शुरू हो जाएगी विद गारंटी, इफ यू फॉलो ऑल दीज फ्रेमवर्क्स, ऑल दीज थिंग्स एंड यू स्टे डिसिप्लिन्ड। कौन कौन 21 डे चैलेंज लेने के लिए रेडी है? यस और नो? रेज योर हैंड्स, यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन रेज योर वॉइसेस। कूल। So now it is the Q&A time. You can ask me any questions if you are left with. That's all. So I have a question. Okay. So for instance, I in my hobbyist time, I produce music, sir. But the thing is, sir, when I work in my studio environment, I tend to get distracted, like by something else. क्या distract करता है? And sir, probably phone notifications and everything, and sometimes even in my field as well, sir. If I'm not studying, I would be working with my music. In my field itself, if something comes up, like this free thing or anything, it tends to take me off the road, and I'm not able to finish my tracks. Okay. Do you want to finish your tracks? Yes or no? Yes, sir. Are you ready to go hard on yourself? Yes or no? Of course, sir. जो सोल्यूशन बताऊंगा अगर वो कर लोगे सोल्यूशन मिल जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर ये मत बोलना कि टास्क कंप्लीट करना था। Of course, sir. डाउनलोड एन एप्लीकेशन जिसके अंदर नोटिफिकेशंस बंद हो जाती है। इफ यू थिंक इंस्टाग्राम इज नॉट गिविंग यू एनी आउटपुट, ठीक है, तो फॉर सम टाइम व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क, लॉग आउट from Yes, sir. Instagram, log out from Facebook, log out from LinkedIn, log out from every damn place which is disturbing you over and over again, and you feel कि यार ये distraction है मेरा। Yes, sir. Do this thing, और उसके बाद disturb करेगा ये? No, I don't think so, sir. Solution पता है। The only point is हम लोग को realize ही नहीं है कि हमारे पास सब है। Yes, sir. Any other question? No, sir, I'm done. Thank you. Any other question? Anyone? Any other Sir, question? I have a question. Okay. Sir, just like I informed you that I have been pitching emails, and sir, just like you said, वो procrastinate होता है. Sir, generally नहीं करता हूँ मैं because, especially sir, I have this problem कि until and unless when I'm seeing results, so it keeps me motivated. But sir, recently, when everything is down, and which is why customers and other clients of ours aren't really responding well to the
emails, and before even starting the email there is a thought in my mind that even if I'm going to do it, it's going to go useless, so I might as well just delay it because it's not going to make any difference. And I won't say I'm right or wrong, but I'll say I'm partially right because that's what happens. But at the same time I delay it, and that's wrong. So Okay. how do you deal with something like this? बताता हूँ. एक चीज समझना, ये लाइन लिख लो, ठीक है? These are the golden words. Human tendency क्या कहती है? We do something either to make a gain or to avoid a pain. ठीक है? तो हम लोग अलग अलग तरीके से ड्रिवन है. हो सकता है हम में से कुछ लोगों को कुछ पाने के लिए करना अच्छा लगता है, लाइक रिजल्ट्स, और हम लोगों को कोई चीज से बचने के लिए अच्छा लगता है. जैसे कि कोई टॉपर फर्स्ट आने के लिए पढ़ता है और फेलियर ना फेल होने के लिए पढ़ता है. गेटिंग मी? फेलियर से बचने के लिए पढ़ता है वो, और वो टॉप आने के लिए पढ़ता है. गेटिंग मी? दोनों का मोटिवेशन अलग है, बट वो अपने अपने सेंस में काम को कर लेते हैं. इन योर केस यू हैव टू फाइंड आउट कि यार मैं ऐसा क्या बेनिफिट जोड़ सकता हूं. इफ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो उसको जाने दो भाड़ में, ठीक है? रिवॉर्ड योरसेल्फ, स्टार्ट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ. डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक चॉकलेट्स, डू यू लाइक एनी सिंगल थिंग दैट यू फील कि यार ये बड़ी मस्त है? या फिर आपको लगता है कि कोई एक चीज है जो मेरे को रोज करने की आदत है, जैसे कुछ खेलने की या कुछ करने की. आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ ओनली एंड ओनली व्हेन आई एम डन विद दिस टास्क. एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट. अगर खुद स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, गिव दिस अथॉरिटी टू समवन, सम फ्रेंड, सम फैमिली मेंबर, सम मम्मा पापा, किसी को भी, कि अगर मैं ये काम करता हूं तो ही अलाउ मी टू डू दिस थिंग, अदरवाइज आई विल नॉट बी डूइंग दिस थिंग. इज दिस क्लियर? अदरवाइज एक हार्ड वे है, एक मुश्किल तरीका है जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? पैसों का जाना सबको बुरा लगता है, राइट? पैसों का जाना सबको बुरा लगता है. अपने आप से वादा कर लो, ठीक है? ये मेरे को किसी एक सीनियर ने बताया था सुबह सुबह उठने के लिए. इफ यू वांट टू वेक अप एट 5, डू वन थिंग. अपने छोटे भाई के पास जाओ एंड आस्क हिम कि अगर मैं रोज सुबह 5 बजे नहीं उठूंगा तो मेरे वॉलेट में से 500 रुपए निकाल के ले लेना. तो एवरी सिंगल मॉर्निंग आपका मोटिवेशन ये नहीं होगा 5 बजे उठना है, आपका मोटिवेशन होगा 500 रुपए बचाना है यार. सर वो मेरे ड्रिंक में नशे की गोली मिला देगा और पैसे भी ले जाएगा. बहुत सही यार, इतने तेज भाई हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता. सो यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वे, ठीक है? मजाक अपनी साइड पे, ठीक है? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी रैशनली कि यार मैं अपने केस में क्या कर सकता हूँ. अब कोई मेरे को बोलेगा मेरे तो सर भाई नहीं है, मम्मी पापा से मैं भाई मांगू? ऑब्वियसली नॉट यार, ठीक है? यू हैव टू फिगर आउट सम वे. Getting me? Any other question? Any other logical question? So, has it ever happened to you that your own friends are pulling your legs and they're saying that you won't be able to achieve this particular task ever? So, if happened, then how did you deal with it? I do not talk to them, and I prove them wrong within 6 months. I do not talk to them. ठीक है? 2016 के अंदर मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था, ठीक है? I was a part of a direct selling organization, ठीक है? एंड उसकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी मार्केट के अंदर, और आप लोग के माइंड में भी शायद अच्छी नहीं होगी, और ना मेरे माइंड में कोई बहुत खतरनाक है आज, ठीक है? बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई शोड माय प्रेजेंटेशन, आई शोड माय प्लान टू माय फ्रेंड्स, दे सेड कि यार ये पॉसिबल नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, फलाना और ढिकाना, ठीक है? इन 6 months आई वाज नॉट एबल टू जनरेट एनी रिजल्ट्स बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू देम कि यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. बट आफ्टर 6 months आई सेड कि यार इसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक कर, हटा, भाड़ में गए. मेरे को जो करना है मैं वो करूंगा. मैंने अपना टास्क लिस्ट लिखा, मैंने अपना लिस्ट बनाया, मैंने कॉल्स करना स्टार्ट करे, मैंने मीटिंग्स करे, मैंने फॉलोअप्स करे, एंड आई वाज एबल टू मेक अ टीम ऑफ मोर देन 100 पीपल विद इन कमिंग 1 year, एंड आई वाज एबल टू टेल देम कि यार भाई मैंने ये चीज लिया, मैंने वो चीज लिया, एंड दे वर शॉक्ड कि भाई तूने इतना टीम बना लिया. मैंने कहा भाई ऑनलाइन दिखाऊं क्या तेरे को? व्हाई? बिकॉज आई वाज नॉट लिसनिंग टू देम. अभी मैं मोटिवेशन वाली लाइन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसमें आपको समझना पड़ेगा, इन लाइफ nobody is going to stay with you forever, right? This is one of my scripts for coming reel, right? I'm disclosing this over here. Like, no one is going to stay with you forever, no one is going to support you forever, and no one is going to like you forever. So why are you asking for approvals from every other person in your life? There's only one person who needs to believe in the single plan that you are having, is you. So start believing in what you actually think that यार ये तो मैं कर सकता हूँ. That's it. उसके बाद करके दिखा दो. Simple. And what if your family does that to you? Family does that. Family की बात सुनना बंद कर दो. भगवान ने 2 कान दिया है, सोचा कभी क्यों दिया है? Listen from one end and then just remove it out. मैं बहुत अच्छा करता हूँ, पता है? बहुत अच्छा करता हूँ मैं. And I've been doing this for a very long time.
And you know what? आज घर वालों को दिक्कत नहीं है, आज घर वाले खुश हैं. Any other question? Any other question? किसी को कुछ पूछना है? In coming 2 minutes, we'll summarize the session. Anyone who can, Prachi, you can take over. I guess you are the host. Thank you so much, sir. It was an extremely enlightening session. We loved it, and surely we will be able to organize our days better now. And we will take you as a role model, and your Instagram account will be the most prominent one and not the memes page. Thank you so much.